Hi guys, in this video we would be comparing a career in banking versus career in RBI grade B. Now we can do this comparison either on the basis of how to prepare them differently or together, but that will not be discussed in this video. Rather, we would be discussing about the perks and lifestyle of both the jobs. And the idea is not to come to a conclusion कि आरबीआई ज़्यादा अच्छा है या बैंकिंग ज़्यादा अच्छा है. बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि आरबीआई तो फादर ऑफ ऑल दी बैंक्स है, आरबीआई बैंकिंग करियर से बहुत अच्छा करियर प्रोवाइड करता है. दैट माइट बी देयर ओपिनियन. व्हाट आई थिंक इज दैट RBI might be a regulator, but at the end of the day, it is the banks who are actually interacting with the customers and are implementing the regulations which are made by RBI. If bank exists, therefore RBI exists. Both are lifeline of our economies. और जॉब के मामले में मुझे लगता है yes, you might be itching to get a job in RBI. बट अगर नहीं मिलती है then it's not about getting a job in RBI. It might be more important to get a job, and then banking sector gives you equal growth and learning opportunities. तो चलिए कुछ पैरामीटर्स पे कंपेयर करते हैं. इफ आई टॉक अबाउट सैलरी, और मैं बैंकिंग में जब कंपैरिजन करूंगा, आई आई टेक द हाईएस्ट बैंकिंग जॉब एज सच फॉर अ फ्रेशर, दैट इज SBI PO. सो हम SBI PO से कंपेयर करेंगे so that you can have a benchmark, and if you are planning to go into IBPS PO or the clerical level post, then you already might be knowing कि वो SBI PO से कैसे कंपेयर करते हैं. so you can very well guess how will they compare with RBI grade B. तो SBI PO हम बैंकिंग में एक बेंचमार्क लेकर चलेंगे. सैलरी की बात करूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट द सैलरी ऑफ SBI PO एग्जैक्टली, because we do not have courses in that area as such, and we do not have many student as such who are working in SBI PO. But अगर मैं RBI की सैलरी की बात करूं, so the CTC comes to around 30 to 32 lakhs. Now this is the CTC. There are a lot of components which would be deducted, like your income tax, your NPS, and if you are taken RBI accommodation, then HRA would also be deducted. सो ये इन हैंड नहीं है, ये CTC है, ये आप समझिएगा, बट इट्स अ वेरी गुड CTC. अगर आप RBI की अकोमोडेशन भी लेते हैं तब भी आपको 1.25 लाख प्लस इन हैंड आ जाएगा. अकोमोडेशन नहीं लेते हैं, द इन हैंड कॉम्पोनेंट वुड बी समवेयर अराउंड 1.75 lakhs. ठीक है, बट दिस इज जस्ट वन सिनेरियो. इसमें से बहुत सारे कंपोनेंट CTC में से आपको मंथली नहीं मिलेंगे, एनुअली मिलेंगे, या कुछ 2 साल में एक बार मिलेंगे. सो देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर. SBI PO की सैलरी इससे कम रहती है. आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, बट मे बी मतलब इससे आप लगा लीजिए 20-22 लाख के गेट में रहेगी. थोड़ी ज़्यादा कम हो सकती है. एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट वन, बट RBI का इतना रहता है. इफ आई टॉक अबाउट वर्क प्रोफाइल, नाउ सिंस RBI इज अ रेगुलेटरी बॉडी, so here your work profile would either be making the policies or implementing the policies. Making the policies might come at a later time in your career, not at the initial level, but implementing the policies will start right away. For example, if you are in the audit department, so you will be doing audit of the banks, you will be visiting the banks, you will be doing inspection there, you will be questioning the people there. So you will start implementing right away whatever RBI has made the policies with respect to banks to follow. और इसी कारण से इस जॉब में काफ़ी रिस्पेक्ट रहती है. आई रिमेंबर वन ऑफ द इंसिडेंट्स, माई स्टूडेंट वॉज वर्किंग इन SBI as an SBI PO. She got selected in RBI, then she visited the same bank as an audit officer from RBI, and even the boss that she used to have in SBI was calling him ma'am. So that is the amount of respect you start getting once you work in RBI. बाकी audit is just an example. Apart from that, you will get various other departments to work in, such as currency management, forex department, treasury हो गया, financial inclusion हो गया, consumer protection हो गया. So every department has its own importance. Banking में many of you might be working, or most of you might be working in the retail segment, but there would be growth opportunities to work in treasury and forex, even in the banking sector. But then again, those opportunities would be very rare, would be given to very few.
पोस्टिंग्स की बात करें तो फॉरेन पोस्टिंग्स आरबीआई में कुछ ज़्यादा नहीं है, बिकॉज आरबीआई की कोई फॉरेन ब्रांचेस नहीं है. बट येस, लेटर इन योर करियर यू माइट बी सेंट टू फॉरेन सेमिनार्स, or you might be deputed to foreign banks in other developing countries, or postings to IMF and World Bank. But that is very rare. I would say 1 in 100 or maybe 1 in 500. You would have to be exceptionally talented to get that. SBI में भी foreign posting ज़्यादा नहीं है, but yes, there are some countries where SBI has its foreign branches. For example, लंदन में है और भी जगह हैं, तो वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, बट अगेन दे आर वेरी रेयर. इंडिया में तो हर कस्बे गांव में ब्रांच है, बाहर ब्रांचेस बहुत कम है. रूरल वर्सेस अर्बन पोस्टिंग की बात करें तो आरबीआई में सिर्फ अर्बन पोस्टिंग्स होती हैं. यू विल गेट पोस्टिंग्स इन एनी ऑफ द मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, त्रिवंतपुरम, लाइक दैट. बैंकिंग में इट कैन बी रूरल और इट कैन बी अर्बन. इनिशियली आपको रूरल पोस्टिंग्स मिल सकती हैं, बट मैंने देखा है काफ़ी लोग रूरल पोस्टिंग सुनकर थोड़ा सा हिचकिचाते हैं. आई थिंक इट्स अ गुड लर्निंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज लेटर इन योर करियर, इवन इन द बैंकिंग सेक्टर, व्हेन यू आर सिटिंग फॉर एनी इंटरव्यू फॉर योर प्रमोशन, देयर वुड बी क्वेश्चंस रिलेटेड टू रूरल इकोनॉमी, कि आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए, आपने क्या सीखा, व्हाट कैन बी डन टू प्रमोट द रूरल इकोनॉमी एंड ऑल दैट. एंड दिस एक्सपीरियंस would surely be helpful in your promotions or even right in your interview for other posts. सपोज कीजिए आप बैंक में काम कर रहे हैं और आप आरबीआई का इंटरव्यू दे रहे हैं, ये वाला एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा. रिगार्डिंग दी ट्रांसफर पॉलिसी, आई थिंक इट्स द सेम. आरबीआई में 5 साल में ट्रांसफर हो जाता है. इफ यू आर वर्किंग एट द हेड ऑफिस इट माइट टेक 7 years. बैंक में भी 3 से 4 साल में you are transferred from one place to another. But the good thing in the transfer in the banks is that they keep you within your city range. For example, आप घर से 70 किलोमीटर में काम कर रहे हैं, your next promotion might be to a city which is 50 kilometers or 80 kilometers within that range. Whereas if you are working in RBI, your transfer might be directly, say, from Jaipur to Kanyakumari or Chennai, or from, say, Bangalore to Delhi. So it can be far away from your home, but that is the beauty. You get to live in different cities, learn different cultures, meet different people. ठीक है. होम पोस्टिंग आरबीआई में एक ही बार मिलेगी, 7 से 5 साल के लिए बस एक बार होम स्टेट पोस्टिंग. बैंक में आप घर के पास काफी देर तक रह सकते हैं. फर्दर स्टडीज, स्पॉन्सरशिप, अगर आप आरबीआई में काम करते करते और फर्दर पढ़ना चाहें, आर देयर एनी अपॉर्चुनिटीज? यस, देयर इज अ गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम. ठीक है. गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम इज फॉर समबडी हु वांट्स टू परस्यू फर्दर स्टडीज. यहाँ पे आरबीआई 50 से 60 लाख तक का स्कॉलरशिप देता है. बट ये सुनकर के 50 लाख का स्कॉलरशिप मिलेगा, ऐसे आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज अगेन दिस इज वेरी रेयर. 3-4 सीट्स निकलती हैं, इतने लोग अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू होता है, और आपको पहले एडमिशन लेना पड़ेगा इन वन ऑफ द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं यूएस के. तो आप अगर उनमें एडमिशन लेते हैं, फिर आरबीआई आपका इंटरव्यू लेगी. आप अगर सेलेक्ट होते हैं, देन यू आर गिवन दैट स्कॉलरशिप, जहां आरबीआई सारी फीस आपकी पढ़ाई की देगा. और इसमें आपको एक बॉन्ड भी साइन करना होता है कि आप अपनी एजुकेशन पूरी कर कर वापस आरबीआई आकर 3 से 4 साल उसमें आरबीआई में ही काम करेंगे. ऐसी कोई फर्दर स्टडीज स्पॉन्सरशिप एसबीआई पीओ में तो नहीं है. एटलीस्ट आई एम नॉट अवेयर. अगर आपको पता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर कर बताइएगा. वर्क लाइफ बैलेंस, बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर क्वेश्चंस उठाए गए हैं. न्यूज़पेपर्स में आता रहता है, ट्यूशन रेट बहुत आए हैं, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सारे सैटरडेज भी ऑफ नहीं है. सो थोड़ा सा एक प्रेशर है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है, तरह तरह के लोग आते हैं. समटाइम्स द पीपल आर नॉट टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑफिसर्स, दे आर नॉट मच एजुकेटेड ईदर. सो एक प्रॉब्लम है वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस की. वेयरएज इन आरबीआई आई वुड से वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी मच स्मूथ. 9 to 5 जॉब, सैटरडे संडेज ऑफ, बहुत सारी छुट्टियां हैं. I would say there would rarely be a scenario where you will be stressed out of work. It can be due to other reasons. Maybe your boss is not good, maybe you're not being promoted, but it would be very rare that you would be in stress out of work.
तो नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी. जॉब सिक्योरिटी दोनों में ही है मेरे हिसाब से. आरबीआई में तो है ही, नो डाउट. इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी, इट हैज नो कैश क्रंच ऑफ फंड्स, इट कैन पे इवन यू हायर सैलरीज. तो आरबीआई में जॉब सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है भाई. एसबीआई पीओ में भी नहीं है, बट इन मेनी बैंक्स वी कीप लिसनिंग अबाउट प्राइवेटाइजेशन. तो उसमें कहीं ना कहीं इश्यूज आ सकते हैं. बहुत बार सुना है कि जो ओल्डर वर्कफोर्स है वो एफिशिएंट नहीं है, टेक सेवी नहीं है. तो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आ सकते हैं वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी को लेकर ओवर द नेक्स्ट 20-25 years, वेयर एज इट सीम्स दैट आरबीआई will recruit and then they will train you even if the skills need to be changed over a period of time. तो ये कुछ कंपैरिजन एरियाज हैं विच आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट. बाकी एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इट्स नॉट अबाउट विच वन इज गुड. ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फर्क रहेगा एक रेगुलेटर और एक बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज दैट यू शुड हैव अ जॉब एंड यू कैन ऑलवेज स्केल अप. Even if you are in a banking job and you aspire to become a regulator one day, you can keep working, going up the ladder. बैंक में काम करो, उसके बाद आरबीआई में जाओ. There's nothing bad in that. So with that, I take your leave. Thank you. And in the upcoming videos, we will also discuss about how to prepare them together. As in, is there any overlap or how can you prepare for banking along with RBI? Thank you. Bye bye.